Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in the last lesson we have seen about the printf function, how the printf function is written, and we have also seen the examples of the printf function. So in this lesson we will be covering the printf function with practical. सो ये लेक्चर में हम ये लेसन में हम देखने वाले हैं हाउ printf function actually works in the program. So to better understand the use of printf function, consider this program. So actually you have seen what is the format of C program. So while writing any program we have to follow that format. So according to format, so first line is hash include stdio.h. Why? Because we have used printf function which is there in stdio.h. So therefore we have to include the stdio.h file. Then next will be the main function. After that there will be opening brace, and the next part of the program is the declaration part. So here I have declared three variables a, b and c as integer data type, and also I have declared a variable x as the float data type. सपोज मेरे प्रोग्राम में जो मेरा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में मुझे 3 इंटीजर वेरिएबल लगने वाले हैं. सो 3 वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, और एक फ्लोट वेरिएबल लगने वाला है सपोज एक्स. सो वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है. सो दिस इज अबाउट द डिक्लेरेशन पार्ट. एंड कंसिडर नाउ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. सो एक्चुअली दिस प्रोग्राम, so if you really observe this program is used to calculate addition of two numbers and the average of two numbers. So this is going to be our first program, but it is very simple that anyone can understand this program. So see what the program is now. So here first statement is a equals to 23. So that means 23 value will be stored in variable a. So that means now a contains 23. Next statement here is b is equals to 45. So 45 value will be stored in variable b. So with this a and b will contain two values. A will contain 23 and b will contain 45. In the next statement c is equals to a plus b. We have added the values of a and b. So with this a plus b means 23 plus 45, which will be equals to 68, and that 68 value will be stored in variable c. So that means the c will contain now addition of two numbers, that is a and b. So this c will contain the addition of two numbers, and the next statement is here x equals to c upon 2.0. So here c is a 68. So 68 upon 2.0. So that means 68 upon 2.0 means we are calculating the average of two numbers. So we know that average is sum upon number of values. So sum is actually here c. c में sum है और उसको हमने divide कर दिया 2.0 से. So that means 68 divided by 2.0. So 68 divided by 2.0 will be equals to 34, and now x will contain value 34. So if you observe this program, c will contain addition of two numbers and x will contain the average of two numbers. So hence in this program I want to print the value of addition and value of average. So therefore I have written this printf function. So see here, first printf function is this %d%f. c की वैल्यू प्रिंट करनी है इसलिए कॉमा के बाद में c, बाद में प्रिंट करनी है x की वैल्यू. सो दैट मीन्स विद दिस printf function values of c and x will be displayed. So let us run the program and see what the output it will generate. So see here, this is the output of the program. So this only. So see here, अगर आप आपका प्रोग्राम बनाते हो, एक्चुअली यू आर डूइंग प्रोग्राम्स फॉर द अदर यूजर्स. आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो. सो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनता है, किसके लिए हम बनाते हैं, अदर यूजर्स के लिए. सो अगर कंसीडर करो ये आपका छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि एडिशन और एवरेज निकालने के लिए किया है.
सो ये प्रोग्राम अगर आप किसी को यूज करने के लिए देते हो, ओके, सो प्रोग्राम यूज करने के लिए दे दिया, उसने रन कर दिया, उसके सामने ऐसा आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो सी, उसको समझेगा ही नहीं कि क्या आउटपुट है, व्हाट इज दिस। सो वैसे तो ये वो अगर देखता है तो ये सिंगल एक ही वैल्यू उसको दिखाई देंगी। सो इसके लिए हमको कभी भी आउटपुट जब भी देना होता है तो आउटपुट बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो ये दो वैल्यूज है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने स्पेस दी दे, पहली वैल्यू इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करेगा, बाद में स्पेस आएंगी और बाद में दूसरी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, दैट इज एक्स की वैल्यू डिस्प्ले होंगी। सो लेट अस रन द प्रोग्राम अगेन एंड सी द आउटपुट। So see now the output. So now the output is first value is 68, that is value of C is 68, and this 34.00 is value of X. अगेन अगर आप ऐसा भी आउटपुट देते हो फिर भी समझेगा नहीं यूजर को, व्हाट इज 68 एंड व्हाट द वैल्यू 34 इज। 68 किसकी वैल्यू है पता नहीं यूजर को, 34 किसकी वैल्यू है पता नहीं है। सो एक्चुअली यूजर सिर्फ ये देखने वाला है, उसको प्रोग्राम नहीं समझता है। वो प्रोग्राम हम प्रोग्रामर लिखने वाले हैं जिनको लैंग्वेजेस आती है। सो ये प्रोग्राम उनको नहीं समझता है, सिंपली आप उनको अच्छा सा आउटपुट दे दो, वो समझ जाएंगे कि वैल्यू क्या है। सो जैसे यहाँ पे 68 34.0, कोई भी पर्सन बाहर से आके बैठा दो, दिखा दो ये आउटपुट है, उसको कुछ भी नहीं समझेगा व्हाट दिस 68 इज एंड व्हाट दिस 34 इज। सो देयरफॉर हमेशा जब भी आप वैल्यू प्रिंट करते हो तो प्रिंट करने के पहले कुछ तो भी अच्छा सा यूजर फ्रेंडली मैसेज दे दो। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर सम ऑफ टू नंबर्स इज के बाद में आता है परसेंट, यानी वैल्यू डिस्प्ले होगी इसके सामने, किसकी वैल्यू, पहले वेरिएबल की, दैट इज सी की। एंड देन दूसरी वैल्यू प्रिंट करने से पहले एवरेज इक्वल टू, और उसके सामने आ जाएंगे आपकी एक्स की वैल्यू। सो सी हियर, सी द आउटपुट नाउ। सो लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ। सो सी हियर, अब आपका आउटपुट हो गया अच्छा, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली। सो अब यहाँ पे आगे देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 68 एंड एवरेज इक्वल्स टू 34.0। सो अब कोई भी सामने वाले पर्सन को अगर आप आपका प्रोग्राम दिखाते हो तो उसको समझ जाएगा कि दिस इज 68 इज द वैल्यू ऑफ सम एंड दिस 34 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज। सो देयरफॉर व्हाइल प्रिंटिंग द आउटपुट ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द यूजर। यूजर को समझ में आना चाहिए, ऐसे आपको प्रोग्राम में आउटपुट देना है। अब फिर से हमने यहाँ पे और भी देखा है। सो जैसे हम यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज कर सकते हैं। सो विद दिस बैकस्लैश एन, this average equals to will be on the next line. So let us run the program and see the output now. So see here, sum of two numbers is 68. सो ये वाला पहले वाला मैसेज आ गया। देन विद द बैकस्लैश एंड कंट्रोल बी ऑन द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा एवरेज इक्वल्स टू। अगर आप ठीक से ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी स्पेस आ गई है, क्यों, क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन के बाद में स्पेस दी है। सो जितनी स्पेस मैंने यहाँ पे दी है उतनी ही स्पेस आपको आउटपुट में भी दिखेंगी। कंप्यूटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द फॉर्मेट विच इज गिवन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये डबल कोटेशन में आप जो कुछ भी देते हो वो फॉर्मेट कंप्यूटर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। आप जहाँ पे स्पेस दोगे वहाँ पे वो भी स्पेस देगा, जो आप लिखते हो डबल कोटेशन में वो भी वैसे के वैसे लिखेगा। एक्चुअली डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश में, अदर देन दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %f, %s और %c। सो इनके अलावा आप डबल कोटेशन में जो भी लिखते हो वो वैसे के वैसे प्रिंट करता है। सो देयरफॉर गिव एनी यूजर फ्रेंडली मैसेज in the format string or in the control string while printing the output. So with this backslash n output कहा जाएगा आपके next line पे। so वैसे ही हमने देखा था backslash t। so backslash t से आपका tab आता है। so let us run the program now. so see here, sum of two numbers is 68,
ये प्रिंट हो गया 68, देन \t, सो \t से एक टैब आ गया और बाद में एवरेज इक्वल्स टू एवरेज की वैल्यू डिस्प्ले हो गई. So this is how we can print the output using the printf function. Suppose इसको मुझे और भी कुछ अच्छी तरह से प्रिंट करना है. अब कंसिडर करो मुझे सिर्फ एडिशन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है. कंसिडर करो मुझे एडिशन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है. सो एडिशन की वैल्यू ऐसे आनी चाहिए सपोज, या फिर आउटपुट मेरा ऐसा आना चाहिए. सपोज ए की वैल्यू आनी चाहिए, बाद में प्लस आना चाहिए, देन बी की वैल्यू आनी चाहिए, देन इक्वल टू आना चाहिए, एंड देन आनी चाहिए आपकी सम की वैल्यू. सो सम की वैल्यू कितनी आती है हमारी 68. सो ऐसे मुझे आउटपुट चाहिए. सो ऐसे आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ कैसे लिखेंगे देखो. सो सबसे पहले मुझे ये वैल्यू चाहिए 23. सो 23 यानी यहाँ पे 23 मत लिखो. अगर आप डबल कोटेशन में 23 लिखते हो तो 23 जैसे के वैसे प्रिंट होगा. मुझे 23 यानी ए की वैल्यू चाहिए. सो ए की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, %d. सो आफ्टर दिस एज वैल्यू बाद में आना चाहिए प्लस ये साइन, बाद में 45 प्रिंट करना है. सो 45 यानी कौन सी फिर से वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है आपकी, इंटीजर. सो दैट मीन्स %d. आफ्टर दैट इक्वल टू आना चाहिए और इक्वल टू के बाद में फिर से c की वैल्यू आनी चाहिए. सो फिर से c की वैल्यू यानी कौन से टाइप की है आपकी, इंटीजर. अब कॉमा के बाद में लिखने हैं आपको वेरिएबल के नाम. सो पहले %d की जगह कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, a. आफ्टर दैट दूसरे %d की जगह कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, b. और तीसरे %d की जगह वैल्यू प्रिंट करने हैं c की. So this will be the printf function for different kind of output. So see the output now. So this 23 ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 23. आफ्टर दैट प्लस जैसे के वैसे प्रिंट हो गया. अगेन वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी बी की विच इज इक्वल्स टू 45. अगेन देयर विल बी इक्वल टू साइन जैसे के वैसे प्रिंट हो गया. देन सी की वैल्यू प्रिंट होगी. सो सी की वैल्यू इज 68. So this is how you can give any format to the output. अब ऐसे कुछ भी नंबर अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी नंबर देते हो, सपोज मैंने ए की वैल्यू 58 दे दी है और बी की वैल्यू 66 दे दी है. सो नाउ सी, सपोज रन द प्रोग्राम नाउ. सो सी हियर, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 58 प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो गई दैट इज 66 इक्वल्स टू. सो सी की वैल्यू ऑफकोर्स दोनों की एडिशन जो है वो सी में गई है तो इट विल बी इक्वल्स टू 124. तो अगर यानी यहाँ पे अगर आप ए और बी की वैल्यू चेंज भी करते हो तो क्या प्रिंट होता है, ए बी की वैल्यू और उनका एडिशन. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.